Okay. Okay. Okay, so what we have studied in our last lecture, what is the need of, थोड़ा रिवाइज करवा देती हूँ. Okay, what is the need of conversion analog to digital and digital to analog? चलो कौन बताएगा मुझे? What is the requirement to convert this? Why we are doing this conversion analog to digital and again digital to analog? I think I will explain this thing for 2 times. Okay, so tell me. Okay, if you have transmit any signal, so if your signal is analog, then numbers of disadvantage are there. क्या क्या disadvantage है? कि एक तो noise उसमें ज़्यादा रहेगा, as well as higher bandwidth is required. It is a time consuming, like require the time consuming means speed is low compared to like digital signal. So at the transmitter side, first of all, we have to convert this analog signal into digital form, because digital signal consists of only 2 bits, 1 and 0. So of course it requires the less bandwidth, better accuracy and reduce the noise, which is normally like adding by the channels. When we are transmitting in data, so always we transmit by some channel. So if channel having some noise, so of course it is added to your signal. That's why. But if it is a digital signal, so it having the like a better noise immunity compared to analog signal. At the receiver side, again we have to convert into digital to analog form. Okay, ये मैंने आपको explain किया था. What is sampling? What is anti-aliasing filter? It is simply in general like conversion. These are the, if it is a 4-bit DSC, digital to analog converter, so these are the simply possible combination by using 1 and 0. And if you convert into decimal value, so at that point we just take as an analog value, this decimal value. Otherwise आपकी decimal value वो आपकी analog नहीं होगी. आपको यहाँ पे सिंपली रेफरेंस के लिए बताया गया है कि आपका कन्वर्जन कैसा होना चाहिए. इट शुड बी लीनियर. इट इज ऑल्सो वन ऑफ द पैरामीटर और स्पेसिफिकेशन ऑफ डीएससी ऑल्सो, कि आपका जो भी कन्वर्जन है वो क्या होना चाहिए, लीनियर. नेक्स्ट वन परफॉर्मेंस पैरामीटर, रिजोल्यूशन. So resolution we can define by 2 ways. One, by using numbers of bit, means DSC consists of n bits, so we can write it is a 2 raised to n. Okay, and second, what is the change in your output if we are changing the LSB bits? LSB continuously अगर आप देखेंगे तो वो continuously change होगा. Like यहाँ पे देखो ये LSB bit है B4, so 010101 continuously change हो सकता है. ठीक है. So in this way we can define 2 definition. उसका कैसा आंसर फाइंड आउट करना है वो भी हमने फाइंड किया था. फुल स्केल वोल्टेज, so when we are like converting digital to analog, so at a particular digital values, मतलब binary values, your current flow maximum, so we can say it is a full scale output voltage. Accuracy, so in a worst case it is always plus or minus 2 of change in your output by LSB, because accuracy, it is a comparison between actual output and expected output. Okay, so continuously per LSB आपका output change हो रहा है, so this change divided by 2, it is your accuracy. Settling time, so normally time required from all 0 to all 1. Okay, सारे फर्स्ट डिजिट क्या होते हैं, सारे 0. आपको 1111 तक पहुंचने में जितना टाइम लगेगा, इट इज कॉल्ड एज ए कन्वर्जन टाइम और settling time also. Dynamic range, so it is normally the ratio of largest output to the smallest output. But if you consider in your case excluding 0, so it is of course 15/1. 15 वो मेरा मैक्सिमम है, 1 वो मिनिमम है, उससे भी मिनिमम है 0, बट आपको एक्सक्लूडिंग बोला है, so we can consider it is simply 1 to 15. Offset error,
So at a zero level, it is the difference between actual and ideal value which give you offset error. Linearity, which I explained, आपका जो भी आउटपुट है वो कहना चाहिए कैसा होना चाहिए, एनालॉग टू डिजिटल हो या फिर डिजिटल टू एनालॉग, इट शुड बी लीनियर. सो विच कंपोनेंट इज सिंपली अफेक्टेड बिकॉज ऑफ दिस योर ग्राफ जनरेट नॉन लिनियरिटी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज ए रजिस्टर एंड स्विचेस. अब रजिस्टर एंड स्विचेस क्या है वो हमने देखा हुआ है ऑलरेडी इन वेटेड रजिस्टर डीएससी में. रजिस्टर एंड स्विचेस which is normally used to enter the binary value. If it is the non-ideal switch, then non-linearity is generated, as well as non-exact value of register if we take, so some non-linearity is always there. Stability means our performance always remains same, means it is not affected by temperature, age, power supply. For this हम क्या करेंगे कि we have to specify this like particular like gain है या फिर linearity error है या फिर resolution है. So we have to specify this parameter over the full temperature range and full power supply range. So if some like change भी होते हैं फिर भी आपका performance क्या रहेगा, same रहेगा, because we have to specify over the full temperature range. Okay, उसके example हमने किए थे. I think it is not required to repeat. Simply depend upon the equation. बेसिक कन्वर्शन टेक्निक हमने की थी. दो टाइप की टेक्निक्स है एंड यही दोनों इंपॉर्टेंट है जो आपको पूछ सकते हैं. ठीक है, एक तो आगे जो डेफिनेशन गई पैरामीटर्स ऑफ डीएससी, और यू कैन से स्पेसिफिकेशन ऑफ डीएससी में भी आस्क. ओके, इन डेफिनेशन में भी फॉर 3 marks और 5 marks. एंड बेसिक कन्वर्शन टेक्निक्स consist of 2 techniques, binary weighted resistor and R2R ladder D2A converter. ओके, सो बाइनरी वेटेड रजिस्टर हमने किया था. ओके, What are the disadvantages of binary weighted resistor? कौन मुझे बताएगा? चलो, what are the disadvantages of binary weighted resistor to a converter? High resistors are not available. Yes, actually it is impractical to fabricate this high resistance value in your IC. क्योंकि आप अगर 8 बीट लेते हैं तो 2⁸ मीन्स 120, तो लास्ट वाला कितना होगा? 128 नंबर का जाएगा. सो 120 R, so it is the largest value compared to the first value, so it is impractical to use this. And some resistance of switch is also added in your current, so it is also disadvantage. So 2 types के उसमें disadvantage है. Binary weighted resistor क्या था? Simply it is a block diagram of binary weighted resistor. V reference and यहाँ पे क्या लिया है? 2R, 4R, 8R and 2⁻n R. And this switches 4 switches we are using because we are given a 4 bits. So B1, B2, B3 and B4 अगर आप दे रहे हैं, यहाँ पे वैसे N लिखा हुआ है but you can assume कि हम B4 तक दे रहे हैं. So 4 switches is required. Switch close है means we are providing B1 is equal to 0. If we are providing B2 is equal to 1, तो यहाँ पे switch close हो जाएगी. यहाँ से जो भी current आएगा. Okay, now I1 की value क्या होगी? What is the value of I1 और equation of I1? यहाँ से voltage आ रहा है VR. रजिस्टर क्या है? 2R. So what is the value of I1? VR by 2R. I1 is equal to VR by 2R. If you consider I2, so क्या होगा वो? VR by 4R. I3 means VR by 8R. ओके, सो I1, I2, I3 अभी लाइक ऐसे मैंने लिया है कि 1 1 1 ऑल आर 1, तो ऑल स्विचेस क्लोज्ड हो जाएगी. सो इट इज I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4, इट इज इक्वल टू योर IT. टोटल वोल्टेज क्या होगा? करंट I1, I2, I3 एंड I4. एंड वी आर टेकिंग दिस टर्म एज ए माइनस बिकॉज ये नेगेटिव टर्मिनल है. किसका? एम्पलीफायर का. इट इज ए समिंग एम्पलीफायर. Okay, it perform the simple addition of all the currents, and after that this IT multiply with RF, feedback resistance, and I and R, उसका multiplication आपको क्या देगा? आउटपुट वोल्टेज. ओके, ये हमने लास्ट किया था सेम जैसे मैंने आपको बोला IT. ओके, नाउ V0 क्या होगा? माइनस होगा IT इंटू RF. RF मीन्स ऐसे रेफरेंस फीडबैक रेजिस्टेंस मैंने लिया हुआ है. ठीक है, I1 क्या होगा? तो कि VR बाय R इंटू क्या होगा? जो भी मैंने BT दिया है कि B1, B2, B3. RF हम VR बाय R को कॉमन निकालते हैं एंड RF को अभी मैं R एज्यूम कर लेती हूँ. सो वी कैन फाइंड दिस टाइप ऑफ इक्वेशन. इफ वी पुट B1, B2, B3 and Bn means 0 1 0 0 something.
सो इन दिस वे वी कैन फाइंड V0। जैसे मैं यहाँ पे पुट कर रही हूँ कि 1 1 0 0, तो ऑफ कोर्स ये दोनों बीट मुझे 1 रखने हैं, बाकी का पूरा क्या होगा 0। तो मेरा आंसर क्या होगा 2⁻1 प्लस 2⁻2 इंटू VR, वो मेरा क्या होगा V0। Now what are the drawback? कि we have to require the large register values and it is impossible to fabricate in our IC, as well as finite resistance of switches disturb the relationship between like current and voltage. Okay, so this resistance is also generate some disadvantages. So these two drawback we can overcome by using R2R ladder. Now what is the importance of this R2R ladder D2A converter? R2R का मीनिंग क्या है कि एक रजिस्टर मुझे R लेना है, दूसरा कौन सा लेना है 2R, बस उससे आगे रेजिस्टेंस की कोई भी वैल्यू नहीं आएगी। एंड वी हैव टू रिपीट दिस लैडर फॉर नंबर्स ऑफ टाइम। R2R का पैरेलल में जो कॉम्बिनेशन है, वी हैव टू रिपीट दिस कॉम्बिनेशन फॉर ऑल अदर स्विचेस कॉम्बिनेशन। ओके, इसमें आपको दो मोड दी है, करंट स्टीयरिंग मोड एंड वोल्टेज स्टीयरिंग मोड। लेकिन अब कोई भी सिंपल, मैं जो आपको फर्स्ट करवा रही हूँ वही एक्सप्लेन करना, अदरवाइज आगे उसका सिंप्लीफिकेशन होके थेवेनिन थ्योरम वो सब भी अप्लाई किया हुआ है, सो उसमें करने की जरूरत नहीं है। आपको सिंपली R2R लेडर कन्वर्टर पूछेंगे तो आपको उसके एडवांटेज क्या है, उसका डायग्राम में क्या है, इक्वेशन क्या है, और एक एग्जांपल लेना है कि अगर मैं 1 1 0 0 दे रही हूँ तो व्हाट इज माय आउटपुट, वो आप इतना करके देंगे, मतलब ये एक्सप्लेन हो जाएगा पूरा। ठीक है, एंड दोनों थियरी इंपॉर्टेंट है। ओके, अब यहाँ पे देखो हमने सिर्फ क्या किया हुआ है, नाउ आगे क्या हो रहा था, वोल्टेज सॉरी आपका रेजिस्टेंस चेंज हो रहा था, नाउ क्या चेंज होगा, वोल्टेज यहाँ से डिवाइड हो रहा है। सो इट इज ए VR/1, यहाँ से डिवाइड होगा तो क्या होगा VR/2। सेम नेक्स्ट में क्या होगा वो VR/4, VR/8 अप टू VR/2n-2 एंड लास्ट में क्या आएगा 2n-1। ओके, सो यहाँ पे वोल्टेज डिवाइडिंग आपको अप्लाई करना है क्योंकि बीच में रजिस्टर दिया हुआ है। बिकॉज ऑफ दिस आपका जो भी वोल्टेज है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हुआ 2R और ये क्या है R, अगेन क्या होगा 2R R अगेन 2R R, so we can say it is a R2R ladder network. So first of all the next network आपको explain करना है what is R2R ladder network. Okay, उसके बाद to each and every ladder we have to combine one switch, जैसे हमने आगे किया था वैसा ही है। अब तो B1 B2 एंड B3 एंड B4 वो सारे बिट्स देने। ठीक है, ओके, अब यहाँ पे देखो, ठीक है, VR का एक टर्मिनल यहाँ पे दिया हुआ है, दूसरे को मैंने क्या किया हुआ है सिंपली कि दूसरे को यहाँ पे ग्राउंड किया हुआ है। तो अगर आपकी स्विच एक्टिव है, जैसे मैंने यहाँ पे इसको क्लोज कर दिया है, ठीक है, तो वो डायरेक्टली यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगी। लेकिन अगर आपकी स्विच क्या है, ओपन है, तो B1 क्या होगा 0, B1 इज इक्वल टू 1 मीन्स स्विच क्या हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी। ठीक है, सो I0 वहाँ पे दे रहे हैं। ठीक है, और सेम यहाँ पे आप कंसीडर करेंगे, जैसे ये यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं क्लोज, तो ये मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे कि एक्चुअल में क्लोज नहीं हुई है स्विच। यहाँ पे क्या है, कहाँ पे कनेक्ट होना चाहिए स्विच, यहाँ पे। ठीक है, सो अगर इस टाइप का है मतलब ये पूरा ग्राउंड में चला जाएगा। देखो यहाँ पे ग्राउंड के साथ कनेक्टेड। ठीक है, आपका यहाँ से जो भी वोल्टेज आ रहा है विच इज कन्वर्टेड इनटू I1 वो कहाँ पे जाएगा, ग्राउंड में। लेकिन अगर आपकी स्विच क्लोज हो जाती है, इफ वी आर गिविंग B1 इज इक्वल टू 1, अगर वो क्लोज हो जाती है तो ऑफ कोर्स I1 कहाँ पे जाएगा, I1 पूरा यहाँ पे जाएगा, फिर यहाँ से I2 मिलेगा, फिर यहाँ से I3 I4 सबका एडिशन होगा, अगेन नेगेटिव टर्मिनल है तो माइनस आएगा, टोटल करंट मल्टीप्लाई विथ रेजिस्टेंस विच गिव मी वोल्टेज। ओके, सो एक्स्ट्रा यहाँ पे क्या दिया है सिंपली कि ग्राउंड किया हुआ है। ठीक है, कि आपका अगर 0 है तो यहाँ पे क्या है VR के साथ ग्राउंड किया है। आगे आई थिंक ऐसा नहीं था, थोड़ा डिफरेंट था उसमें। ओके, इसमें क्या था सिंपली कि VR को यहाँ पे क्या कर दिया था, ग्राउंड कर दिया था डायरेक्टली, बराबर। और यहाँ पे एक ही ऑप्शन था आपके पास, स्विच ऑन रखो या फिर क्लोज रखो। लेकिन यहाँ पे क्या है कि जैसे ही आपका आंसर, अगर स्विच आपकी ऑफ है तो डायरेक्टली जो भी करंट मुझे मिला है वो डायरेक्टली कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा, क्योंकि अब उसकी रिक्वायरमेंट है ही नहीं मुझे। क्योंकि अगर वो यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा तो कुछ ना कुछ सर्किट में करंट या वोल्टेज क्या होगा, ऐड होगा। तो सिंपली क्या करना है, यहाँ से इसको ग्राउंड कर देना है सिंपली। ठीक है, लेकिन अगर 1 दे रहे तो यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगी सारी स्विच। ना उसकी इक्वेशन डिराइव करनी है और एक कॉम्बिनेशन आपको यहाँ पे देना है कोई भी कि 1 1 0 0 और क्या आंसर आ रहा है वो आपको दिखाना है। ठीक है,
ओके नाउ I1 क्या होगा यहाँ पे, फर्स्ट तो VR/1 है, सो इट इज ए VR/2R। नेक्स्ट में क्या होगा, VR/2 इंटू 2R, सो इट इज ए VR/4R। तो वैसे आगे हो रहा था वैसा ही हुआ, देखो VR/2R, VR/4R, बट जो ड्रॉबैक था कि हम नंबर्स ऑफ वैल्यू R की यूज कर रहे थे वो यहाँ पे नहीं आया। हमने सिंपली क्या किया, यहाँ पे वोल्टेज का डिवीजन कर दिया, दैट्स वाई बीच में R कनेक्ट करके वोल्टेज का डिवीजन कर दिया। सो सेम नेक्स्ट में क्या आएगा, VR बाय क्या आएगा 8R, बिकॉज यहाँ पे क्या आएगा VR/4 इंटू 2 मीन्स 8। सो वी कैन से इट इज ए I1, सो I1/2 कर सकते हैं हम, क्योंकि यहाँ पे क्या था I1 VR/2R, यहाँ पे एक 2 एक्स्ट्रा आया, सो वी कैन राइट I1/2। सेम यहाँ पे लिख सकते हैं I1/4 एंड In क्या होगा इन जनरल, सो इट इज ए 2n-1 डिवाइड बाय 2R। सो इन दिस वे वी कैन राइट I1 डिवाइड बाय 2n-1। वी नो दैट कि V0 क्या है वो हमें ऑलरेडी पता है कि ITRF। अब IT एक्चुअल में क्या है वैसे, तो अल्टीमेटली IT तो मेरा क्या होगा, एडिशन ही होगा ना यहाँ पे एक्चुअल में, ठीक है। आउटपुट करंट यहाँ पे IT में जा रहा है, सो ऑफ कोर्स इट इज एडिशन, I1 I2 I3 एंड I4 सबका एडिशन ही होगा वो तो यहाँ पर सिंपली ऐड किया हुआ है, जैसे वहाँ पे राइट रखा था वही आएगा, जैसे लिखा था मीन्स कि B1 डिवाइड बाई VR/2R प्लस B2 इंटू VR/4R, वो तो वही आएगा। VR/2R को कॉमन निकाला हमने, सॉरी VR/R को कॉमन निकाला, कंसीडर RF इज इक्वल टू R, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो लास्ट में अल्टीमेटली मुझे फॉर्म तो सेम ही मिला। आप देखो इस फॉर्म को और आगे का हमारा जो था वेटेड रजिस्टर का जो फॉर्म था उसको कंपेयर करो, वो दोनों तो अल्टीमेटली क्या है, सेम ही है। ओके ये भी सेम है और ये भी आगे का जो था वो भी सेम है, ठीक है। अब यहाँ तक हुआ, मतलब आपका R2R का पूरा कंप्लीट हो चुका है। नाउ वी कैन एक्सप्लेन बाय वन एग्जांपल कि नाउ टेक द वन वैल्यू, लेट अस कंसीडर अ 4-bit बाइनरी DAC विथ बाइनरी इनपुट 1001 एंड RF इज इक्वल टू R। ओके सो सिंपली RF इज इक्वल टू यहाँ पे R लिया, ठीक है। फिर क्या है 10001 में दे रही हूँ, मतलब ये दोनों जो करंट है I2 एंड I3 वो डायरेक्टली ग्राउंड में चले जाएंगे, ठीक है। सिंपली किसका एडिशन होगा, I1 प्लस I4 का। तो यहाँ पे देखते हैं, देखो इन दोनों को जीरो कर दिया, किसका एडिशन हुआ I1 एंड I4 का। सो वी कैन फाइंड दिस वैल्यू। बस यहीं तक आपको एक्सप्लेन करना है, अदरवाइज इसमें दो मोड दिए हैं, इट इज़ ए करंट स्टीयरिंग मोड जो दिया हुआ है एंड दूसरा है वोल्टेज स्विचिंग मोड। आप दोनों तरीके से अगर आपको चाहे तो आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन कोई भी एक ही याद रखना, अदरवाइज क्या होगा कि आप कंफ्यूज हो जाओगे इसमें, इसीलिए, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको एक ही करवा रही, वोल्टेज करंट स्टीयरिंग वाला, वो आपके लिए इजी रहेगा कि उसकी कंपैरिजन आगे के साथ थोड़ी इजी है, दैट्स व्हाई, ठीक है। तो ये करना है, ये एक्सप्लेन करना है पूरा, इक्वेशन डिराइव करना है, एक एग्जांपल लेना है, कोई भी आप ले सकते हैं, उसकी कोई वैल्यू फाइंड करके आपको दिखाना, ठीक है। फिर डायरेक्टली उसके एडवांटेजेस से उसमें चले जाना है, अदरवाइज इसमें थेवेनिन वगैरह अप्लाई होगा। अगर आप वोल्टेज स्टीयरिंग अप्लाई करते हैं तो उसमें थेवेनिन भी यूज हो रहा है, तो उसमें मिस्टेक होने के चांसेस है, इसीलिए आपको वोल्टेज स्टीयरिंग का नहीं एक्सप्लेन करना है, करंट वाला ही करना। आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, आपको जो भी कन्वीनियंट हो। Okay, advantages of R2R ladder. Okay, easier to build accurately as only a 2 precision metal film resistor are required. Okay, सिर्फ दो ही resistor चाहिए, एक R and दूसरा कौन सा 2R. Numbers of bit can be expanded by adding more numbers of section of R and 2R value. जितने भी बिट के लिए आप कंसिडर करना चाहो कर सकते हो, सिंपली मुझे RTR की वैल्यू ही रिपीट करनी है। In inverted R2R ladder DAC, node voltage remain constant with changing input binary word. This avoid any slowdown effect by stray capacitance. वो एक्चुअली नेक्स्ट वाला जो वोल्टेज उसके लिए लिखा हुआ है कि नोड वोल्टेज है वो आपका क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। बस उसके बाद तो हमने जो आगे किया था वही है, ठीक है। V0 नॉर्मली क्या होगा, तो ऑफ कोर्स हमें पता है V0 क्या होता है, तो कि टोटल करंट जो मुझे मिला कौन सा IT इनटू फीडबैक रेजिस्टेंस के साथ वो मल्टीप्लाई होगा, सो इट इज ए माइनस IT इनटू RF, इट इज योर V0, ओके। एंड I out इज इक्वल टू, यू कैन राइट, जैसे V0 का हम लिखते थे, V0 का क्या लिखते थे, रिजोल्यूशन इनटू D। सेम आप करंट के फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि करंट रिजोल्यूशन इनटू D।
अगर V0 में लिखती हूँ तो V0 इज इक्वल टू क्या आएगा, तो I out into RF, so it is a current resolution into D into RF. We have to put simply I out equation here. ओके, नाउ V0 इज इक्वल टू क्या होगा, तो करंट रेजोल्यूशन इंटू RF इंटू D, तो वो कौन सा रेजोल्यूशन बन जाएगा, इट इज I और ये RF. समझ आए, ये क्या है, रेजोल्यूशन तो है बट करंट का है, सो वी कैन कंसीडर इट इज I इंटू आर. I इंटू आर मीन्स अल्टीमेटली क्या होता है, वोल्टेज रेजोल्यूशन. सो वी कैन सिंपली राइट रेजोल्यूशन इंटू D, जो हम आगे करते थे वही यहाँ पे डिराइव किया हुआ है. ठीक है, एंड रेजोल्यूशन की इक्वेशन सिंपली यहाँ पे लिखी है, वी आर बाई क्या होगा आर, वो तो कॉमन ही है, इंटू डिवाइडेड बाई क्या आ रहा है 2n, जो भी वैल्यू लाइक वी आर डिवाइड हो रहा है ना कि वी आर बाई 2, वी आर बाई 4, सो इट इज वी आर बाई आर 1/2n इंटू क्या आएगा आर एफ, विच इज योर रिजोल्यूशन. ये आई थिंक हमने आगे वेटेड रजिस्टर में भी डिराइव किया हुआ है, सेम ही है. ठीक है, वी आर बाई आर इंटू 1/2n इंटू आर एफ. ओके, करंट आउटपुट के लिए फाइंड करेंगे तो ऑफ कोर्स यहाँ पे क्या है आर, सो इट इज अ वी आर बाय आर, तो वी बाय आर करूंगी तो आर आर कैंसिल हो जाएगा. सो करंट रिजोल्यूशन के लिए फाइंड करेंगे तो ये मिलेगा, एंड वोल्टेज रिजोल्यूशन के लिए ये मिलेगा. दोनों तरीके से आपको पूछ सकते हैं. ठीक है, ओके, नाउ एक एग्जांपल है, suggest the values of resistor and a reference voltage if resolution is required 0.5 volt for a 4 bit 2R ladder DAC. रेजोल्यूशन की इक्वेशन मुझे पता है. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको देख लेना है क्या क्या मुझे दिया हुआ है. तो एक तो मुझे क्या दिया है, रेजोल्यूशन दिया है कितना 0.5, दूसरा क्या दिया 4 बिट मीन्स n इज इक्वल टू 4, और वी आर इज इक्वल टू 10 वॉट. इट इज अ मिस्टेक, यहाँ पे स्पेसिफाई होना चाहिए कि आपको वी आर क्या दिया है, रेफरेंस वोल्टेज 10, जो यहाँ पे नहीं. ठीक है, वो यहाँ पे डायरेक्टली ले लिया है उन लोगों ने, अदरवाइज आपको स्पेसिफाई करके देना पड़ता है क्योंकि यहाँ पे जो चीज़ दी है उसका इसके साथ कोई भी रिलेशन नहीं है. सो रेफरेंस वोल्टेज अलग से आपको देना पड़ता है. सो वी आर इज इक्वल टू 10 वोल्ट अगर आपको दिया है और ये 3 वैल्यू अगर आपको दी हुई है, ठीक है, तो बस बाकी की वैल्यू आपको पुट करनी है. सो आर बाय आर एफ मैंने यहाँ पे फाइंड किया. आपको वैसे बोला क्या है, सजेस्ट द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस. तो रजिस्टर तो दो ही है इसमें, कौन से, एक तो आर, दूसरा आर एफ. 2R है बट आर अगर फाइंड करते हो तो 2R तो ऑटोमेटिकली मिल जाएगा. सो दो ही रजिस्टर फाइंड आउट करना, आर एंड 2R. तो मैंने यहाँ पे सारी वैल्यू पुट करके आर बाय आर एफ का रेशियो फाइंड किया. नाउ इसका 1.25 कब आ सकता है, हम एज्यूम कर सकते हैं कि अगर आर एफ की वैल्यू क्या है 10 एंड आर की वैल्यू क्या है 12.5. सो इफ यू कंसीडर 12.5 डिवाइड बाय 10, तो यहाँ पे क्या आएगा 1.25. ओके, तो ये सिंपली एज्यूम किया हुआ है कि if I take 10 and R is equal to 12.5, so we can say 1.25. Okay, now calculate the output voltage and conversion resolution of 8-bit R2R ladder DAC for input data of with reference voltage of 10. Okay, आपको यहाँ पे रेफरेंस वोल्टेज दे दिया. रेफरेंस वोल्टेज इट इज योर फुल वोल्टेज, क्योंकि वी आर नॉर्मली हम क्या देंगे, फुल ही देंगे ना. आप कोई भी पावर सप्लाई देते हैं तो नॉर्मली क्या देते हैं, जितनी आपके सर्किट में रिक्वायरमेंट है उतनी फुल ही दे देते हैं आप. तो रेफरेंस वोल्टेज आपका फुल स्केल वोल्टेज होगा यहाँ पे. तो एज पर द डेफिनेशन VOFS डिवाइड बाई 2n-1, 8 बिट बोला है, सो इट इज a 2/8. VOFS ऑलरेडी दिया हुआ है, सो इट इज दिस. ओके, और क्या बोला है, कैलकुलेट द आउटपुट वोल्टेज एंड कन्वर्जन रिजोल्यूशन. ओके, तो रिजोल्यूशन तो हमने फाइंड किया. ना आउटपुट वोल्टेज कैसे फाइंड होगा, इट इज द रिजोल्यूशन इनटू डी. रिजोल्यूशन हमारा फाइंड हो चुका है, ये इनटू क्या होगा डी. तो डी कहाँ पे है, ये इसका बाइनरी करना पड़ेगा. ये जो नंबर है उसका बाइनरी, इसका बाइनरी करके देखो 221 आ रहा है. चलो, आपको नंबर दिया हुआ है 11011101. Find its decimal value.
इस ये बाइनरी वैल्यू आपको दी, उसका डेसिमल ये आ रहा है कि नहीं बताइए, 2 to 1. इट इज 2:0, 2:1 जो 0 दिया हुआ है, 2:2, 2:3, 2:4, 0, 1, 2, 3, 4 and 5, 6 and 7. आपको 2:7 दिया हुआ है, मतलब इट इज 128. उसमें से टोटल कितना होगा ये 2:7 मीन्स 128. फिर 2:6 मीन्स कितना होता है, 2:6 मीन्स 64. 32 में 0 दी है तो काउंट नहीं करना है. सो 128 प्लस 64 प्लस 16 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 1. सो ये मुझे 2 to 1 मिलना चाहिए. मिल रहा है कि नहीं? Yes, ma'am. Okay. So it is a 2 to 1. Now multiply this D with resolution. So we can find VC. आपको एक 5 बिट का दिया हुआ है, 5 बिट लेडर नेटवर्क विथ रेफरेंस वोल्टेज ऑफ 10. ओके, सो अब यहाँ पे डिफरेंट पूछा है आपको. देखो, एनालॉग आउटपुट ड्यू टू एलएसबी चेंज. एलएसबी में अगर मैं थोड़ा भी चेंज करती हूँ तो मेरा आउटपुट क्या आएगा वो आपको दिखाया. 5 बिट का आपको बोला है, ठीक है. तो टोटल वोल्टेज डिवाइड बाय क्या आएगा, 2:5, ठीक है. एंड नेगेटिव में नॉर्मली हम वो सप्लाई दे रहे, अगर लैडर नेटवर्क है तो इसलिए यहाँ पे माइनस आर. नेगेटिव टर्मिनल में आप जो भी आउटपुट आ रहा है वो कहाँ पे दे रहे हैं, I1 प्लस I2 प्लस I3 नेगेटिव में. दैट्स वाई. सो इट इज अ टोटल वोल्टेज डिवाइड बाय, कहाँ तक वो चेंज कर सकता है, ठीक है, 2:5, 2:0, 2:1, 2:3 मीन्स टोटल कितने कॉम्बिनेशन जिसमें एलएसबी चेंज होगा. सो 2:5 कॉम्बिनेशन. दैट्स वाई इट इज टोटल वोल्टेज डिवाइड बाय 2:5. तो मुझे क्या देगा, एनालॉग आउटपुट ड्यू टू एलएसबी चेंज एंड फुल स्केल आउटपुट वोल्टेज. सो वो कितना होगा फुल स्केल आउटपुट वोल्टेज. अगर आपको सिंपली एलएसबी चेंज नहीं बोला है तो आपका जो वीआर है ना वही आपका वीओएफएस होता है. लेकिन अगर एलएसबी कुछ भी चेंज हो रहा है देन वी हैव टू सबट्रैक्ट दिस. तो 10 आपको टोटल दिया है, उसमें से जो चेंज हो रहा है वो सबट्रैक्ट करना है, विच गिव यू द फुल स्केल वोल्टेज. तो 10 माइनस 0.3125, सो विच गिव यू द 9.685. ओके. सेम एनालॉग आउटपुट फॉर डिजिटल इनपुट 1101. तो डी फाइंड आउट करना है और उसको रिजोल्यूशन के साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है. एंड अल्टीमेटली रिजोल्यूशन भी क्या है, क्या रिजोल्यूशन मीन्स क्या है, आगे भी मैंने आपको बताया हुआ है. सेकंड डेफिनेशन क्या थी रिजोल्यूशन की, कि डिफाइन एज द चेंज इन द आउटपुट पर एलएसबी चेंज. तो वो आपको ऑलरेडी यहाँ पे फाइंड किया. As per the second definition of resolution, this change is the resolution. ठीक है. So minus 0.3, 1.25 into 25, which give you the actual output. Okay. So total 2 methods है. कौन सी, weighted resistor and second it is a R2R ladder. दोनों के अपने like दोनों के तो नहीं, फर्स्ट वन है उसका डिसएडवांटेज है, विच इज कवर्ड बाय सेकंड R2R ladder. ओके. और दोनों के एग्जाम्पल से वो करना है, ठीक है. नेक्स्ट जो आ रहा है इट इज ए D2A कन्वर्टर आईसी. मोस्ट इंपॉर्टेंट या आईसी इंपॉर्टेंट नहीं है, वो आपको बता देते. सिर्फ 2 मेथड ही आपको पूछेंगे. सो जस्ट एक बार देख लेना, अगर बाय चांस पूछे तो आप कुछ ना कुछ उसमें लिख सकते हैं, बट इट इज नॉट टू मच इम्पोर्टेंट. ओके. आईसी स्पेसिफिकेशन. ओके. नॉन ओनली 2 मेथड अभी जो मैंने आगे करवाई वही इंपॉर्टेंट है. सो इट इज सिंपली आईसी. कौन सी आईसी है ये, तो कि D2A कन्वर्टर की, और आईसी का नंबर इट इज ए लाइक 0808 नंबर की आईसी यहाँ पे दी है, आईसी 1408. एंड DAC कौन सा है, 0808. उसके टोटल 16 लाइक पिन कॉम्बिनेशन है, वो आपको दिखाया गया है. ईच एंड एवरी पिन क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है. और टोटल यहाँ पे कितने बिट लिए देखो, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7 and 8. मीन्स इट इज, यू कैन कंसीडर इट इज 8 बिट आईसी. यहाँ पे लिखा हुआ भी है 8 बिट है, तो यहाँ पे तो सिंपल 8 बिट दे दिए. बाकी की सारी वैल्यू क्या है, इनपुट, आउटपुट है, रेफरेंस वैल्यू है, ग्राउंड है, उसके आउटपुट रेंज है, VCC है, करंट है. तो एक बार देख लेना जस्ट, ठीक है. उसका अगर आपको ब्लॉक डायग्राम ड्रॉ करना है लाइक, तो आप इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं आईसी का. कैसे है, एक तो 8 बिट, क्या क्या चाहिए, R2R लैडर है तो एक तो R2R लैडर चाहिए, ठीक है. फिर क्या होगा,
बेसिक सर्किट, मतलब सिंपली जो भी कनेक्शन है कि करंट स्विचिंग एंड लेडर के बीच में क्या कनेक्शन है, दोनों के ओप एम्प के साथ क्या कनेक्शन है, इट इज कवर्ड बाय बेसिक सर्किट। ओके, एंड लास्ट में क्या आएगा, बेसिक सर्किट कनेक्टेड विथ एम्पलीफायर, जो लास्ट वाला है। ठीक है, तो यहाँ से डेटा आ रहा है और यहाँ से क्या होगा, वो आउट होगा। यहाँ से मैं क्या दूंगी, डिजिटल वैल्यू दूंगी which is covered by R2R ladder network and given to the amplifier converted into analog wave. Okay, so simply ब्लॉक डायग्राम इंपॉर्टेंट है, एक बार देख लेना। ये आईसी का डायग्राम है और ये आईसी का जो ब्लॉक डायग्राम है वो दिया हुआ। ठीक है, ये करंट फाइंड आउट किया जो ऑलरेडी हमें पता है कैसे करना है। कोई भी बिट दिया है, क्या आता है, वी आर बाय आर, R14 लिखा हुआ है यहाँ पे, वो एक्चुअली यहाँ पे मेंशन नहीं, यहाँ पे दूसरी सर्किट में ये जो है R14, वो क्या है, एक रजिस्टर है जो इसके साथ कनेक्टेड है। ओके, R14 मतलब इंडिविजुअल आप जो R2R कंसिडर करते हैं उसमें रजिस्टर कौन सा है, R14 है, जो 5 वोल्ट मतलब सेकंड पॉइंट के साथ कनेक्टेड है, आउटपुट के साथ कनेक्टेड है R14। जैसे हम आई एंड आर का मल्टीप्लीकेशन करते हो तो मुझे क्या देता है, V0 देता है इन दिस वे। ठीक है, सो इट इज R14, तो इसलिए यहाँ पे R14 लिखा हुआ। यू कैन सिंपली राइट R ऑल्सो, वो तो अपने हिसाब से जो भी पिन के कॉम्बिनेशन है, दैट्स वाई यहाँ पे R14 मेंशन किया हुआ है, बिकॉज वो 14 नंबर की पिन के साथ कनेक्टेड है। यू कैन सिंपली राइट R ऑल्सो। और ये सारे तो आपको पता ही है, A बाय 2⁻1, A2 डिवाइड बाई क्या होगा, A2 A3 A4 क्या है, इट इज B1 B2 B3 जो हम आगे यूज किया था, 2⁻2 2⁻3 2⁻4। ठीक है, और ये जो बाहर निकाला था हमने VR बाय R वही है। तो अगर आप यहाँ पे एक एग्जांपल भी दिया हुआ कि आपको ऐसा बोले कि सारी वैल्यू 1 है, कि A1 A2 A3 ऑल बिट्स आर 1, ओके, एंड रेफरेंस वोल्टेज 5 लिया है अगर मैंने, एंड R14 कितना दिया है 2.5, अगर वो मैं पुट करती हूँ तो मेरा I0 कितना मिलता है। वैसे आपको कोई एग्जांपल में पूछ नहीं सकते हैं, बट यहाँ पे दिया है तो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ सिंपली। ठीक है, यहाँ पे उसका आउटपुट भी फाइंड करने को बोला है। आउटपुट कैसे मिलेगा, यहाँ पे एक्चुअली मुझे क्या मिल रहा है, तो कि करंट, नाउ दिस करंट मल्टीप्लाई विथ RF की वैल्यू भी क्या दी है 2.5, दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो लास्ट में क्या मिलेगा मुझे, आउटपुट। ठीक है, सो यहाँ पे डिफरेंट सिंपली दिया हुआ है, सर्किट दी है। फर्स्ट वाली है वो कौन सी है, आईसी है। ठीक है, आईसी का डिटेल ब्लॉक डायग्राम, मतलब आईसी के अंदर कौन सा ब्लॉक्स है, तो ये है। ठीक है, उसके बाद उसकी सर्किट कैसी होगी, ईच एंड इंडिविजुअल सबकी सर्किट कैसी होगी, जैसे ये यहाँ से आ रहा है A1 A2 A3। ठीक है, तो हम उसको डायरेक्टली दे सकते हैं, या फिर 8255 वो एक माइक्रो कंट्रोलर है जिसके थ्रू वो नेक्स्ट आएगा, COA जो आपका सब्जेक्ट आएगा नेक्स्ट सेमेस्टर में वो आएगा। सो अगर हमें अपने हिसाब से बिट नहीं देने हैं, डायरेक्टली लाइक पर्टिकुलर ब्लॉक थ्रू देने हैं, तो 8255 वो आपको नंबर्स ऑफ वैल्यू देता है, बाइनरी माइक्रो कंट्रोलर, तो वो क्या करेगा, वैल्यूज देगा, और इसके हिसाब से हमारे आईसी क्या करेगी, वर्क करेगी। और ये तो हमने जो ड्रॉ किया था वही है उसके साथ। ठीक है, और ये सारे क्या है उसके, आप ये जो VR अप्लाई कर रहे थे वो सारे इसमें क्या है, कनेक्टेड है, एंड सम कैपेसिटर इज ऑलवेज देयर, वर्क एज ए फिल्टर, जो भी आप कन्वर्जन करेंगे। ठीक है, उसमें अगर नॉइस है तो हम कैपेसिटर थ्रू उसको रिमूव कर सकते हैं, दैट्स वाई यहाँ पे कनेक्ट किया हुआ। ठीक है, सो दिस पर्टिकुलर 3 ब्लॉक डायग्राम एक बार देख लेना, ये करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसमें यूनिपोलर रेंज में था और इसमें बाइपोलर रेंज में। यूनिपोलर का मतलब क्या है कि मैं सबको 1 1 दे रही हूँ, एंड बाइपोलर का मतलब क्या है कि अगर मैं पर्टिकुलर बीट में 0 दे रही हूँ या 1 दे रही हूँ, दोनों वेज से अगर मैं कर रही हूँ, सो इट इज अ बाइपोलर रेंज। ठीक है, सो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, सिंपली आपको मैंने दिखाया है कि जिस टाइप की आईसी है उसका इंटरनल स्ट्रक्चर ऐसा है। ठीक है, वो एक बार सिर्फ देख लेना, अगर आपको याद नहीं रहे तो इट्स ओके, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आपकी जो 2 मेथड्स है वही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक है जो आईसी हमें दी है। रेफरेंस करंट क्या है, तो कि 2 मिली वोल्ट, सप्लाई क्या है तो कि +5 वोल्ट, एंड -15 वोल्ट वो भी ई है, मीन्स वोल्टेज है वो भी। सेटिंग टाइम क्या है, फिर फुल स्केल आउटपुट करंट क्या है, एक्यूरेसी क्या है, वो आपको सिंपली यहाँ पे क्या है कि दी मतलब इलेक्ट्रिक कैरेक्टरिस्टिक स्पेसिफाई की है फॉर पर्टिकुलर आईसी के लिए। ये भी आपको याद नहीं रखना है सारी वैल्यूज।
Last application of DAC. So DAC are used with a digital signal processor to convert signal into analog for transmission in mixer circuit. ओके, नॉर्मली रिसीवर साइड इसका यूज होगा, इसलिए DSP यूज किया। अगर आपका कोई भी सिग्नल है वो लाइक ट्रांसमिट होके आया है चैनल थ्रू, तो ऑफकोर्स सम नॉइस इज ऑलवेज देयर, तो हमें क्या अप्लाई करना है, सिग्नल प्रोसेसिंग, उसको थोड़ा प्रोसेस करना है, फिल्टर आउट करना है, उसके बाद कन्वर्ट करना है। ठीक है, दे आर यूज्ड इन वेवफॉर्म जनरेटर एज वेल एज यूज्ड इन, ऑफकोर्स वेवफॉर्म जनरेटर में कैसे यूज होगा कि मैंने डिजिटल वैल्यू दी है, उसका मुझे वेवफॉर्म जनरेट करना है, तो ऑफकोर्स मुझे सबको किस में कन्वर्ट करना है, एनालॉग, और जितनी भी वैल्यू मिली है उस सबको क्या करना है, कनेक्ट कर देना है विद जनरेट वन टाइप ऑफ वेवफॉर्म, एंड दे आर यूज्ड इन A to D कन्वर्टर ऑल्सो। ओके, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, क्योंकि आप अल्टीमेटली अगर A to D करेंगे, ठीक है, तो D to A भी करना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि एक्चुअल सिग्नल कौन सा है, एनालॉग, वापस उसको ओरिजिनल फॉर्म में लाना ही पड़ेगा। तो जब आप ADC यूज करते हैं तो बाय डिफॉल्ट DAC तो यूज होगा ही, सो दे आर यूज्ड इन ADC कन्वर्टर। ओके ओके, सो ये D to A का कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट आपका आएगा, इट इज A to D कन्वर्ट, कि एनालॉग टू डिजिटल कैसे करना है, उसमें ये यूज होगा सैंपल एंड होल्ड सर्किट, वो हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। अभी तक सिंपली क्या कंप्लीट हुआ है, डिजिटल टू एनालॉग, उसमें दो मेथड इंपॉर्टेंट है, बाइनरी वेटेड एंड दूसरी कौन सी है, R2R लेडर, वो दोनों ही करनी है। IC का सिंपल एक बार दोनों ब्लॉक देख लेना, ठीक है, अगर बाई चांस पूछे तो, अदरवाइज वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट लेक्चर में हम A to D स्टार्ट करेंगे। अप टू दिस पॉइंट इफ यू हैव एनी डाउट देन प्लीज आस्क। ओके, एंड कल हमारा जो लेक्चर है मैंने आपको बताया, उसमें हम 7 नंबर का जो प्रैक्टिकल है एंड और गेट डिजाइन बाय यूजिंग मल्टीसिम वो हम करेंगे। ठीक है, सो विलिंगली अगर किसी को भी करना है, आपके पास लैपटॉप है, ठीक है, उसमें आपका नॉलेज ही इंप्रूव होने वाला है। सो कोई भी एक स्टूडेंट है वो लैपटॉप लेके आना, ठीक है। क्रिश को तो वैसे मैंने बोला ही है, लेकिन अगर आपको भी किसी को ऐसा है कि आपके पीछे परफॉर्म करना है, तो मैं यहाँ से गाइड करूंगी, उस तरह से आपको मल्टी सिम में एंड और गेट बना के उसको परफॉर्म करना है। ठीक है, आपके लिए भी वो इजी रहेगा अगर आप आगे भी यूज करेंगे, अगर आप कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हैं, ठीक है, अगर आपने नेट से कोई भी सर्किट ली है, सो वो जैसे आपका डिजाइन इंजीनियरिंग का प्रोजेक्ट है, आपने कुछ लिया है जिसमें पर्टिकुलर इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स से कोई कंपोनेंट यूज हो रहा है या कोई सर्किट यूज हो रही है, तो परफेक्टली वर्क कर रही है कि नहीं, आप कैसे जजमेंट करेंगे। सो यू कैन डिजाइन इन मल्टीसिम में आप डिजाइन कर सकते हैं। अगर वो परफेक्टली वर्क कर रही है तो आप अपने प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हैं, क्योंकि नेट पे जितने भी सर्किट है वो पॉसिबल नहीं कि सारी करेक्ट हो, तो आप मल्टीसिम में रन करके एक बार चेक कर सकते हैं। सो इसका एडवांटेज भी है कि अगर आपको मल्टीसिम आता है कि नहीं, वैसे हमने आगे के जो सेम है हमारा जो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स उसमें भी किया हुआ है, ठीक है, और सोर्स अवेलेबल भी है, क्रिश को भी मैंने दिया हुआ है मल्टीसिम का, तो अगर किसी को करना है तो आप उसमें से कर सकते हैं। ठीक है, सबके पास लैपटॉप नहीं होता, इसलिए मैं किसी को फोर्स नहीं कर रही, बट प्लीज किसी के पास है तो आप उसकी प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, एंड दूसरा ये मल्टीसिम वाली कुछ नॉट लाइक एंड्रॉयड वाली एक इवेंट है, उसमें रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है स्टूडेंट ने। एक्चुअली बाहर की जो भी जितने भी कॉलेज है, लाइक पारुल है या फिर लाइक बाबरिया है और IISc बेंगलोर से भी रजिस्ट्रेशन हुआ है, बट हमारी कॉलेज से नहीं हुआ। एक्चुअली ये लाइक IIT बॉम्बे का है, एज वेल एज दिस एंड्रॉयड ऐप यूजिंग कोटलिन, एंड दिस कोटलिन इट इज वन टाइप ऑफ लाइक ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेस्ड ऑन एंड्रॉयड। ठीक है, सो इट इज ए न्यू टेक्नोलॉजी बेस्ड ऑन एंड्रॉयड। अगर आप इसमें अटेंड करेंगे तो आपका ही नॉलेज इंक्रीज होने वाला है, क्योंकि आप डिजाइन इंजीनियरिंग में प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो नॉर्मली लाइक एंड्रॉयड बेस्ड स्टूडेंट करते हैं कोई भी एप्लीकेशन अगर बनानी है तो। ठीक है, तो आपके लिए भी एडवांटेज है। और 236 प्राइस है, मुझे पता है कि 236 प्राइस है, इसलिए आप रजिस्ट्रेशन नहीं करवा रहे, बट 236 से वो कोई बिग थिंग नहीं, आप इतनी फीस से वो पे कर रहे हैं, तो 236 इतना एडवांटेज नहीं है। और ये मतलब इतना आपको एटलीस्ट इतना तो आप अफोर्ड कर सकते हैं ना। और ये जो है कि IIT बॉम्बे का जो स्पोकन वाला था, वो एक्चुअली इन लॉकडाउन में वो फ्री था,
लेकिन अभी उन लोगों ने चार्जेस कर दिए, दैट्स वाई ये 236 इंक्लूडिंग जीएसटी आप लोगों से ले रहे हैं, ठीक है। तो स्पेशली मैडम ने बोला हुआ है कि स्टूडेंट को बोलो कि इसमें मैक्सिमम रजिस्ट्रेशन और पार्टिसिपेट करे, ठीक है। सो अभी 2 days के लिए ओपन है, सो प्लीज रजिस्टर इन दिस एंड पार्टिसिपेट, ओके। ओके, नाउ कुछ आपकी साइड से कुछ है, कुछ डाउट तो बताइए, अदरवाइज आई विल टेक अटेंडेंस, ओके। एंड प्लीज सोर्स लेके मल्टीसिम इंस्टॉल करके एक बार ट्राई कीजिए। यू कैन डिजाइन एनी सर्किट इन मल्टीसिम। कल तो वैसे मैं क्रिश को मैंने बोला है, तो उसमें तो हम 7 नंबर का करेंगे रिपीट, ठीक है। और तब तक जो भी लैब के जो एक्सपेरिमेंट है वो उसमें अपलोड कर देना, ठीक है। एंड अगेन आई लाइक टेल यू कि आपकी क्या है, टेस्ट कब है, सैटरडे 4 to 4:55 आपकी क्लास टेस्ट 4 to 4:55 फॉर यूनिट नंबर 3 के लिए सैटरडे रहेगी, ओके। Okay, I just take attendance and